Hello everyone, welcome to my channel Commerce Online. In this video, we're going to solve chapter 1, exercise 1C, question number 5. So in this question, given that a square b plus c equals to 2b minus c. What is given? A square b plus c equals to 2b minus c. And we need to find out two things, which is find the value of a. We need to find a when b equals to 7 and c equals to 2. In part B, we need to find out c when a equals to 4 and b equals to minus 1. So let's start the solution. First, I will write the question, which is a square b plus c equals to 2b minus c. अब मैं इस इक्वेशन में b और c की वैल्यू पुट करूंगा ना. I will put the value of b and c in this equation. We have a square, b is 7, c is 2 equals to 2. b क्या है हमारे पास? 7 minus c is 2. Now a square 7 plus 2 equals to 14 equals to 2 7s are 14 minus 2. A square equals to 14 minus 2 is 12. Now 14 is divided with a square. जब हम इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा. सो वी हैव a square equals to 12 upon 14. Now both 12 and 14 can be cancelled and both occur in the table of 2. So we have 2 6 are 12 and 2 7 are 14. Now I'll take root on both sides. So we have a square equals to 6 upon 7. Now that this square cancelled out the root, so we have the answer a equals to under root 6 upon 7. Now let's move to the next part. अगले पार्ट में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कह रहा है, इन विच यू आर आस्क्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन, जिसमें आपको अब c की वैल्यू पुट करनी है. जब आप c की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. सो वी हैव b और b की वैल्यू है a स्क्वायर b प्लस c equals to 2b minus c. Now a स्क्वायर की जगह हम 4 लिखेंगे, विच मीन्स जो a है इसकी जगह हमने 4 लिखना है. b की जगह हमने b की वैल्यू पुट करनी है और b की वैल्यू हमारे पास है -1 प्लस c एज इट इज लिख देंगे, बिकॉज नाउ अब हमें c की वैल्यू मालूम करनी. 2 b हमारे पास -1 है माइनस c. नाउ 4 का स्क्वायर 16 -1 plus c equals to 2 1s are 2 -2 minus c. Now 16 अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. 16 1s are 16 -16 plus 16c equals to -2 minus c. अब आप जरा गौर से देखें, वी हैव -16 -2 इक्वल किस तरफ आएगा?
+2 and this is -c plus 16 equal के इस तरफ चला जाएगा -16c. So we have -14 equals to -17c. अब हमें c की वैल्यू मालूम करनी है, so that -17 and -14. So we have -14 -17 c से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल किस तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. Now we have 14 upon 17 which is c. ठीक है. Now let's move to the next question which is 6. Rearrange each of the following formulae to make the letter in the bracket as the subject. इसका मतलब हमें c की वैल्यू मालूम करनी है. हमारा पहला क्वेश्चन है f बराबर है 9/5c plus 32 and we need to find out the value of c. First I will write solution. Now f equals to 9/5c plus 32. ये प्लस 32 है, इक्वल के इस तरफ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा. We have 9/5c. Now this 5 is dividing here, डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. So we have 5f minus 32 equals to 9c. अब ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. So we have f minus 32 equals to c और ये हमारा आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. We have b here. a equals to 2 pi r square plus pi r l. Or now we need to find out the value of l. So we have a now equals to 2 pi r square plus pi r l. Now this 2 pi r square is in plus. When we change its direction it will be in minus. So we have a minus 2 pi r square equal के इस तरफ आ गया, माइनस में आ गया. Now we have pi r l. Now a minus 2 pi r square. अब ये pi r l से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल के इस तरफ चले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे. So we have a minus 2 pi r square divided by pi r equals to l और ये हमारा आंसर है. Let's move to the next question which is C. इसमें कह रहा है s equals to u t plus half a t square. अब आपके पास सॉल्यूशन है, आपने लिखना है s equals to u t plus हाफ a t स्क्वायर और आपको u की वैल्यू मालूम करनी है. आप करेंगे क्या, आपने बहुत ही सिंपल तरीके से दैट प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ये पूरी वैल्यू इक्वल के इस तरफ मूव कर देंगे. जब आप चेंज करेंगे दैट प्लस साइन विल बिकम माइनस एंड वी हैव 1/2 a t स्क्वायर equals to u t. Now this t is dividing, multiplying is here, so when we change its direction that will become s minus half a t square divided by t equals to u. Now if you look closely, this t can be cancelled with this t, so we have s upon t minus half a t. Why? Because this t is also dividing with s and this t, ये t s के साथ भी डिवाइड हो रहा है and this t is also dividing with 1/2 half a t square. So this t cancelled the power of square. So we have only one t remaining और ये हमारा आंसर है. Now let's move to the next question which is D.
Here s equals to n upon 2a plus n minus 1 d. यहाँ पर we need to find out the value of d. हमें d की वैल्यू मालूम करनी. First I will write solution. Now s equals to n upon 2a plus n minus 1 d. Now you need to find out the value of d. तो हम सबसे पहले ये जो बाहर वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे. 2 डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. वी हैव 2s इक्वल्स टू n 2a प्लस n माइनस 1 d. नाउ ये n मल्टीप्लाई हो रहा है तो वी हैव 2s अपॉन n इक्वल्स टू 2a प्लस n minus 1 d. अब this 2a has plus sign, so when we change this direction ये हमारे पास minus 2a हो जाएगा, which is equals to n minus 1 upon d. अब if you look at closely, n minus 1 यहाँ multiply हो रहा है, equal के इस तरफ जाएगा. So we have n minus 1 2s upon n minus 2a equals to d. अब we need to solve it further. हमें इसे थोड़ा सा मजीद सॉल्व करने की जरूरत है ताकि जवाब और ज्यादा क्लियर आ जाए. आप यहाँ गौर करें, we have 1 here, माइनस का साइन यहाँ है तो हम इसका एलसीएम लेंगे और बड़ा ही सिंपल तरीका, हम इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे. वी कैन सॉल्व इट बाय शॉर्टकट मेथड. आई विल मल्टीप्लाई 1 विथ n, सो आई हैव n. नाउ n मल्टीप्लाई होगा 2a से, so that will become 2an. मैं रिपीट कर रहा हूं, n मल्टीप्लाई होगा 1 से, we have n. n मल्टीप्लाई होगा 2a से तो वी हैव 2an, और 1 मल्टीप्लाई होगा 2s से तो वी हैव 2s. ये क्वेश्चन पिछली प्रीवियस एक्सरसाइज में भी सॉल्व है, जिसका लिंक जो है मेरे चैनल पर पूरी वीडियोस मौजूद है. सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन मोर डीपली यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियोस. ठीक है. अब डिवाइडेड बाय n minus 1 equals to d. Now ये डिवाइड का जो साइन है इसको अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वी हैव 2s माइनस 2an डिवाइडेड बाय n. ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया. अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो वी हैव n माइनस 1 और इसके नीचे वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करके n माइनस 1 यहाँ लिख देंगे. हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे. ठीक है. इस कॉन्सेप्ट को हम ये समझ सकते हैं, ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय बी अपॉन सी. तो जब ये डिवाइड का जो साइन है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है तो हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं. ठीक है. डी. तो हम जो डी है ये जो डिनोमिनेटर में है इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे और सी को ऊपर लिखेंगे. सेम हमने यहाँ भी ऐसे किया, डिनोमिनेटर में वैल्यू थी उसको ऊपर लिख दी और डिनोमिनेटर में वैल्यू थी इसको नीचे लिख दी. Now we have answer which is 2s minus 2an divided by n minus 1 equals to d, and that is